ഉണ്ടാകണം. लेकिन परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे ऊपर होना चाहिए. നമ്മുടെ സഭ ദുഷ്ടസഭയല്ല. हमारे कलीसिया बुरी मंडली नहीं है. ആമേൻ. ഇസ്രായേൽ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ദുഷ്ടസഭ എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ്. और इस्राएल कलीसिया के बारे में बुरी मंडली है करके बोला गया है. ഞാൻ 5 മിനിറ്റിനകത്ത് നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. 5 मिनट में मैं बंद करने वाला हूँ. 11-ാം അധ്യായത്തിൽ തിരുമേശയുടെ വിഷയമാണ്. और 11वां अध्याय में प्रभु का मेज के विषय में लिखा हुआ है. ആമേൻ. കർത്തൃമേശ എങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. हम प्रभु का बोझ को कैसे भी हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. കർത്തൃമേശ എടുക്കേണ്ടവർ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. और प्रभु का बोझ में भाग लेने वाले योग्य होना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതിന് ഡെക്സ് ബൈബിൾ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. और डेक्स बाइबल में इसके बारे में ज्यादा समझाया है. ആമേൻ. അത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. और उतना ही बोल के जल्दी से पूरा करूंगा. ഒന്ന്, തിരുമേശ അതിഭക്ഷണത്തിലും മന്ദതയിലും എടുക്കാൻ പാടില്ല. और प्रभु का बोझ हम बिल्कुल अलक्ष्य रूप में नहीं लेना चाहिए और कोई भी प्रकार की सुस्ती से नहीं लेना चाहिए. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വയറ് നിറച്ചടിച്ചിട്ടും വന്ന് എടുക്കേണ്ടതല്ല തിരുമേശ. और सब कुछ बराबर पेट भर के आकर उसके बाद प्रभु बोझ लेना ऐसा नहीं है. ഒന്ന് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുക്കത്തോടെ വന്നെടുത്താൽ അത് നല്ലതാണ്. और उपवास करके प्रार्थना करके परमेश्वर के सन्मुख में बाट जोकर बाद में हम प्रभु बोझ लेने के लिए आए तो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. രണ്ട്, ദരിദ്രനെയും അനാഥനെയും അവഗണിച്ച് തിരുമേശ എടുക്കാൻ പാടില്ല. और दरिद्रों को और अनाथों को अवगणना करके हम प्रभु बोझ लेना नहीं चाहिए. ആമേൻ. ഡെക്സ് ബൈബിൾ പറയുന്നതാണ്, എന്റെ വിശദീകരണമല്ല. ये मेरा वर्णन का तरीका नहीं है, डेक्स बाइबल बोलता है. ഭിന്നതയോടും അസൂയോടും കൂടെ തിരുമേശ എടുക്കാൻ പാടില്ല. फूट के साथ और ईर्ष्या के नहीं तो डाह के साथ प्रभु बोझ लेना नहीं चाहिए. ആമേൻ. 4, ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാതെ ഇതിലെടുക്കാൻ പാടില്ല. और चौथा, शरीर को परखने के बिना हम प्रभु बोझ में भाग लेना नहीं 5, चाहिए. പെസഹ ആചരിക്കുന്നത് പോലെ പഴയ ആരാധനാക്രമം പോലെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. और बस फसह को मनाने के समान नहीं तो पुराने रीति रिवाज के समान हम प्रभु बोझ ऐसा है करके समझ के नहीं लेना है. 6, ദൈവത്തെയും ദൈവസഭയെയും തുച്ഛീകരിച്ച് തിരുമേശ എടുക്കാൻ പാടില്ല. प्रभु को और प्रभु की कलीसिया को तुच्छ मानकर हम प्रभु बोझ में भाग नहीं लेना नहीं चाहिए. നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. नहीं तो हम बहुत ही साधारण है करके समझकर प्रभु बोझ नहीं लेना चाहिए. ആമേൻ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. സഭയ്ക്ക് ഒരു അധികാരമുണ്ട്. कलीसिया के लिए एक अधिकार है ആ സഭയെ തുച്ഛീകരിച്ചുകൂടാ. और उस कलीसिया को कभी हम तुच्छ ना समझे. 7, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പാപജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമായി മാത്രമേ മേശയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാവൂ. और उद्धार पाकर उसके बाद अच्छा पवित्र जीवन बिताकर प्रभु बोझ में भाग लेना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. 12-ാം അധ്യായവും 14-ാം അധ്യായവും കൃപാവരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. और 12वां वचन और आगे के वचन आत्मिक वरदानों के विषय में है. ആമേൻ. കൃപാവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെയുള്ള വിശദീകരണമാണ്. और वरदानों को किस प्रकार से हम उपयोग करना उसके बारे में वर्णन किया गया है. എന്നാൽ 13-ാം അധ്യായം എത്ര കൃപാവരം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നു. 13वां अध्याय में चाहे कितना भी वरदान है, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है. എല്ലാം മർമ്മം ഗ്രഹിച്ചാലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവചനം പറഞ്ഞാലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതുമില്ല. कितने वरदान है, हम भविष्यवाणी भी बोले, सारे कुछ भी बड़े काम करे, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है. 15-ാം അധ്യായം പുനരുത്ഥാനമാണ്. और 15वां अध्याय पुनरुत्थान के विषय में है. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആമുഖമായി നാം കേട്ടു. और प्रभु आने के समय में हमारा पुनरुत्थान होगा, हम पिछले दिनों में सुना था. അതിന്റെ വിശദീകരണ പഠനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. और उसकी गहराई की पढ़ाई में हम उतरे नहीं थे. ആമേൻ. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരൊന്ന് കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താണ്. प्रभु आने के समय में हम जी उठेंगे, ऐसे विश्वास रखने वाले अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. ആമേൻ. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും जो पहला पुनरुत्थान में जो पुनरुत्थान होगा वो धन्य है. ആമേൻ. आमीन. അതുകൊണ്ട് इसलिए ഉണർന്നിരിക്കണം. हम जागते रहना चाहिए. ഭിന്നത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, और बीच में फूट होना नहीं चाहिए. ജഡീകരാകാതിരിക്കാൻ, और शारीरिक न बने.
ഉപദേശിമാരെ മറ്റുള്ളവരെ വിസ്തരിക്കാതിരിക്കാൻ, और किसी भी परमेश्वर के दासों को हम कुछ भी न्याय न करें, ദുർനടപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, और बुरी चाल ना होना चाहिए, കോടതിയിൽ പോകാതിരിക്കാൻ, और अदालत नहीं तो कोर्ट में ना जाए, ഡൈവോഴ്സ് നടത്താതിരിക്കാൻ, और तलाक का बातें ना करे, വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നാതിരിക്കാൻ, मूर्ति पूजा के वस्तु ना खाए, സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ, और सुसमाचार की सेवकाई के लिए दे, ആമേ പരീക്ഷിച്ചും ദുർമോഹിച്ചും ആമേ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ, और लालच करके हम नाश ना हो, യോഗ്യതയോടെ തിരുമേശയെടുക്കാൻ, और योग्यता के साथ प्रभु भोज में भाग लेना है, സ്നേഹിച്ച കർത്താവിനെയും പരസ്പരവും സ്നേഹിച്ച കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ നാം ഉണർന്നിരിക്കണം. और प्रेम करते हुए प्रभु को प्रेम करते हुए आगे बढ़े. ഉണർന്നിരിപ്പീൻ, इसलिए जागते रहो, വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ, विश्वास में स्थिर रहो, ആമേൻ, ശക്തിപ്പെടുവീൻ, बलवंत हो जाओ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുവീൻ. जो कुछ करते हो प्रेम से करो. ആമേൻ. आमीन. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ച ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനുള്ള അവസരം തന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനും പ്രിയ സ്റ്റീവൻ അപ്പച്ചന്, ദൈവദാസന്മാർക്ക്, ദൈവസഭയ്ക്കൊക്കെയുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശേഷാൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവവചനം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയ അങ്കിളിന്, മറ്റുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കരം തട്ടി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है, ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है, लाल समुंदर के बीच में तेरे प्रजा को ले चला है, लाल समुंदर के बीच में तेरे प्रजा को ले चला है, प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरे वायदा बदलता नहीं, प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरे वायदा बदलता नहीं, तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, तेरे तुल्य कौन है, ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है, ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है, 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 ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है, ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है. बैठिए. प्रेज़ द लॉर्ड. आज शाम को हमारे संडे स्कूल की एनिवर्सरी होगा 4 बजे. सारे स्टूडेंट्स 3:30 बजे, स्टूडेंट्स और टीचर्स 3:30 बजे चर्च हॉल में पहुंचने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है. सारे पेरेंट्स और जो कोई आना चाहता है अब आ सकता है. संडे स्कूल बच्चे सब लोग वाइट ड्रेस में आना करके आपसे रिक्वेस्ट है. ठीक है, ओके. एक छोटा अनाउंसमेंट है. सी वार्ड का मीटिंग कल सोमवार
ब्रदर के यशुदास के कौन सी मकान नंबर को दें सी 805 सी वार्ड। इधर आप बात करने का नहीं है, आप सुनने का। 805 में ही होगा, सी वार्ड के, बाकी लोगों के लिए नहीं है, केवल सी वार्ड के लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं। 805 में, वही कॉलोनी में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। We have been continuously listening to the word of God for a whole week. हम एक सप्ताह से परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहे हैं Monday onwards, we are here. और सोमवार से हम यहाँ पर उपस्थित थे। Many of you are missing. आप में से कई लोग यहाँ नहीं आए थे। God's word is a spiritual food. परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। The word of God is the only thing that is our spiritual food. परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए एकमात्र आत्मिक भोजन है। The servants of God have been supplying all the food for us. और परमेश्वर के दास उन सारे भोजनों को हमको देते रहते थे, So we will be walking by that. इसलिए हम उसमें चलेंगे। So many counsel of God और कई परमेश्वर के सलाह through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा Many of you have been touched and spoken. और कई लोगों के पास परमेश्वर का वचन सलाह के रूप में पहुंचा था। So we are going to see the reaction of this church. और इसका प्रतिक्रिया हमारे कलीसिया में इन दिनों में हम देखेंगे। In different ways, the Spirit of God has been speaking to us. अलग अलग तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा था। So I want to continue a few things more. और थोड़े और विषय को मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। One thing I want to tell you, एक विषय में बोलना चाहता हूं, do not miss any of your meetings. और कोई मीटिंग को भी आप ना छोड़े। Don't miss any of your meetings आपके कोई भी मीटिंगों को आप ना छोड़े, unless you are compelled by your sickness या आप बीमारी के द्वारा मजबूर हो तो, or you are compelled by your job. या आपके नौकरी की वजह से आप जबरदस्त है तो। We give importance to spiritual life. हम आत्मिक जीवन के लिए मुख्य स्थान देते हैं। And second, we give importance to the study और दूसरा, हम पढ़ाई के लिए भी मुख्य स्थान देते हैं, or job. नहीं तो नौकरी को मुख्य स्थान देते We हैं। don't want anybody lazy in their jobs. और कोई भी हम नहीं चाहते कि अपने काम में कोई आलसी रहना है, Nobody should be lazy in their studies. और अपनी पढ़ाई में कोई आलसी बनकर ना रहे। Here there is a boy यहाँ एक लड़का है who has scored 100% mark for all the subjects. जो हर एक विषय में 100% अंक लेके एक लड़का बैठा है। I may be thinking of giving some reward to such people. और ऐसे कुछ बच्चों को मैं उनको इनाम देने के लिए चाहता हूँ। 100% marks in all subjects. और सभी विषयों में 100 अंक लेके आए हैं। So some of your children are studying in 10th standard. आपके कुछ बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते Some हैं, are studying in 12th standard. कुछ बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। We want your children should pay maximum attention and hard work for their studies. अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान और पूरा परिश्रम और मेहनत करें। He used to call kamchor हम काम चोर करके बोलते हैं, and their studies chore. We don't like that. और ऐसे पढ़ाई में चोरी करने वाले लोग हम नहीं चाहते हैं। Work hard. बहुत ही कठिन परिश्रम करो, Work hard. मेहनत करो, Work hard. परिश्रम करो। I want to continue a few things as I was speaking to you. और कुछ विषयों को मैं आपको बोलना चाहता हूं जो पहले बोला था। He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। I suggest, मैं आपको सुझाव देता हूं, don't give your boys or girls two-wheelers, scooter or whatever without license. आपके बच्चों को 2 व्हीलर स्कूटर बिना लाइसेंस का नहीं देना, Whatever reason may be. चाहे कुछ भी कारण हो। Don't break the government law. सरकार के नियमों को न तोड़े। And also four-wheeler for those who are not licensed for that. और 4 पहिया का गाड़ी भी नहीं देना जिनके पास लाइसेंस नहीं है। You may be rich.
आप धनवान होंगे, You should be rich. धनवान होना चाहिए। God wants you to be rich. परमेश्वर चाहता कि धनवान बने रहे, We also want you to be rich. और हम भी चाहते कि धनवान बना रहे। One Inspector General of Police told me और आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा he had only one son उसका एक ही पुत्र था and he lost his son और अपना बेटा खो दिया, and he was weeping. और वो रो रहा था। Inspector General of Police. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, He was the commander in one of the forces. और वहां का एक दल का वो कमांडर था। How? कैसे? By driving the four-wheeler. और वो 4 व्हीलर चला रहा था, By giving his car to his four-wheeler to drive that four-wheeler. अपना खुद के कार 4 व्हीलर को उसने चलाने दिया। Don't miss over smart. बहुत ज्यादा होशियारी ना दिखाए। Buy a cycle, allow your boys to go to school and colleges in cycle. और एक साइकिल खरीद के आपके लड़कों को स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए साइकिल दे दीजिए। Some people don't come to church because the father is on duty. और कुछ लोग कलीसिया में नहीं आते क्योंकि उनका पिता ड्यूटी में है। Will two-wheeler driving people go to heaven? क्या 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले लोग स्वर्ग में जाएंगे? Nobody will go. Only four-wheeler people are going to heaven. क्या 4 व्हीलर वाले ही स्वर्ग में जाएंगे? In England I saw और इंग्लैंड में मैंने देखा tracks were made for cycle drivers. और साइकिल चलाने वालों के लिए अलग ट्रैक बना हुआ था, Large number of people. और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग। In England I saw going by cycle. और बहुत लोगों को इंग्लैंड में साइकिल में मैंने जाते हुए देखा। So don't be proud. इसलिए घमंड ना करना, Never be arrogant. और कभी भी ऐसे हठीला ना बनना। Arrogant क्या बोलेंगे भैया? Arrogant. अहंकारी. Never be arrogant. अहंकारी ना बनना। So come back with me. मेरे साथ आइए, A few points more. और कुछ और पॉइंट मैं बताऊंगा। There is a problem with my watch and with the church clock. और मेरे घड़ी में और चर्च का घड़ी में भी थोड़ा तकलीफ है। I was surprised yesterday why Uncle Matthew stopped the meeting beforehand, according to my time. और मैं चकित हो गया कि मैथ्यू अंकल ने कैसे मेरे समय के अनुसार मीटिंग बंद कर दिया। That time is different. This is different. My mobile number is also different. और मेरी इस घड़ी में टाइम अलग है, वहाँ अलग है, मेरे मोबाइल में टाइम दूसरा है। So if I continue a few minutes more, यदि मैं थोड़ा और समय इस मीटिंग को चलाऊं, you will forgive me. आप मुझे माफ करना चाहिए। I want to go by this watch. और मैं इस वॉच के अनुसार जाऊंगा, Let's correct it. नहीं तो उसको सुधार दीजिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। From the 91st Psalm, और 91वें भजन से for 2-3 weeks we have been studying the Word of God. 2-3 वचन से हम परमेश्वर का 2-3 सप्ताह से परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे। From the book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक से, which chapter I was telling you? 25th chapter, 4th verse. यशायाह 25 का 4 वचन। I have been preaching this word for you for 3 weeks. 3 सप्ताह से मैं इसके बारे में प्रचार कर रहा था। So when I sat with that servant of God yesterday, कल मैं परमेश्वर के उस दास के साथ जब बैठा था, the Holy Spirit spoke that word to me. पवित्र आत्मा ने उस वचन मुझसे बातें किया। Read that 25th chapter, 4th verse. Isaiah 25. பெருவெள்ளத்தை போல் இருக்கையில் நீர் ஏழைக்கு பலனும் நெருக்கப்படுகிற எளியவருக்கு திடனும் பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலமும் வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமானீர். You have been a refuge for the poor. तू संकट में दीनों के लिए गढ़, You have been a refuge for the needy. और दरिद्रों के लिए तू शरण, In his distress. और उनके उपद्रव में। You have been a shelter from the storm. और झोंका जो दीवार में लगता है उसमें तू उनकी सहायता की, You have been a shade from the heat. और तपन में छाया का स्थान हुआ। What God is for you. परमेश्वर आपके लिए क्या है? Straighten your heads. आपके सिरों को सीधा रखे। What God can be for you. परमेश्वर आपके लिए क्या हो सकता है? Number 1. पहला, Again repeat him. मैं फिर से बोलता हूं, You have been a refuge for the poor. तो संकट में दीनों के लिए गढ़ है।
You have been a refuge for the needy in the distress. जो जरूरतमंद है उनके सकेते के समय तो उनके लिए शरण है, You have been a shelter from the storm. और झोंका में तो उनकी सहायता करता है, You have been a shade from the heat. और तपन में छाया का स्थान बनता है। God wants these things to be for you. परमेश्वर इन चीजों आपके लिए बनना चाहता Now I है। am going to repeat it. मैं फिर से बोलने वाला हूँ, You repeat in your own language. आप आपकी भाषा में उसको बोलिए। You have been a refuge for the poor. संकट में दीनों के लिए गढ़, You have been a refuge for the needy in the distress. और उनके परेशानी में तो उनके लिए शरण बना, You have been a shelter from the storm. और झोंका से तो उनके लिए भयानक झोंका से You बचा, have been a shade from the heat. और तपन में छाया का स्थान हुआ। When? कब, What? कैसे, How? कैसे, Where? कहां पर? The breath of the ruthless is like a storm driving against a wall. और भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता है। You have been like the heat of the desert. Sir, क्यों पहले आप लोग ऐसे कर दिए? अलग अलग, लेकिन you are an educated fellow. I am confused in my eyes. Praise God. Put that 24 and 25, 4 and 5 together. Four and 5 together. What shall you do? You dismiss me, man, and you become pastors. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। I have been praying for my departure. Bol. आप मुझे छोड़ने के लिए, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, But I think God is not planning. लेकिन परमेश्वर उसके लिए योजना नहीं कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। So from the 9, what God wants you to be, परमेश्वर God wants to be for you. परमेश्वर आपके लिए क्या बनने के लिए चाहता है, This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। This word is spoken for me. ये वचन मेरे लिए बोला गया है, And if so, God wants to speak it for you. और ऐसा हो तो ये वचन परमेश्वर आपके लिए बोलना चाहता For है, you. आपके लिए बोलना चाहता For है, you. आपके लिए बोलता है, For you. आपके लिए बोलता है। For my 70 years of spiritual life, मेरे 70 साल के आत्मिक जीवन में my God has been like this. मेरा परमेश्वर ऐसा ही मेरे लिए था। For my 73 years of spiritual life, मेरा 73 साल के आत्मिक जीवन के लिए, 70 years of spiritual life, मेरे 70 साल के आत्मिक जीवन के लिए God has been like this to me. परमेश्वर इसी प्रकार मेरे लिए था। I vouchsafe. और मैं उसके लिए पक्का विश्वास के साथ बोलता I हूँ, vouchsafe. मैं उसके लिए भरोसा के साथ बोलता हूँ। I have faced a lot of the things from the ruthless people. और ऐसे भयानक लोगों से मैंने कई समस्या का सामना किया, That life has been so hard to me for so many times. और कई बार मेरा जीवन बहुत ही खतरनाक रहा था। Don't speak to your mother, but listen to the word of God. Praise God. Praise the Lord. If God has been like this to me, यदि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा था तो that powerful God is able to do that same thing for वो you. सामर्थी परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही कार्य करेगा। Read again. फिर से पढ़ेंगे। You silence the uproar of the foreigners. और तू परदेशियों का, Speak in your language. You speak the uproar of the foreigners. As heat is reduced by the shadow of a cloud. It's not in your Bible. It's not in your Bible. तो परदेशियों का कोलाहल को बंद करता, किसके? परदेशियों का। बराबर सिर सीधा रख के माइक ऊपर रखो, ऐसे पढ़ो। तो परदेशियों का कोलाहल को बंद करता है, निर्जल देश में बादल की छाया। शांति रखो। നീ അന്യന്മാരുടെ ആരവത്തെ അടക്കി കളയുന്നു. அந்நியரின் மும்முரத்தை தனியே பண்ணுவீர்.
तो ये मेरे सजेशन है, तुम सबसे पीछे जाकर बैठो, नहीं तो इधर फर्स्ट लाइन में आकर बैठो। सबसे पीछे जाकर बैठने के लिए कई लोग भेज दूंगा। पीछे बैठना, ओह कुछ भी गीत भी नहीं है, कुछ भी शक्ति भी नहीं है, बच्चे खेलते हैं, नाचते हैं। मेरे बहनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। कई बहनों बाहर जाके बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल लाइफ है, ये वर्शिप है। मैं सोच रहा हूँ कि वर्शिप सर्विस के समय में कुछ स्त्रियों को कुछ उधर रखे, कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाए, इसलिए माँ को बच्चों से थोड़ा दूर रहे, कम से कम थोड़ा वचन सुनने के लिए बात मिले। पर मैथ्यू कंसिडर अबाउट दैट। ये पीछे साइड में हम लोग लेंगे, 2 नर्सेस को रखेंगे, उनको बच्चों को खिलौना, वो बच्चों को खाना खिलाना, सब कुछ हो जाएगा। कई चर्चेस में होते हैं, कई चर्चेस में होते हैं। मैं पीछे बैठ रहा था और बाहर थोड़े बहनों खड़े खड़े देखा बच्चों के साथ, और दुनिया का बकवास करते हुए आपस में, तेरा बच्चा का दांत कैसा है। I want God's presence to be felt completely in this church. इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति सभी लोग महसूस करना चाहिए। God wants you to be like that. परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में चाहता है। Come back with me to the book of Psalms. और मेरे साथ भजन संहिता में आप आ जाइए। 91. 91 भजन। Follow me. Follow me. मेरा पीछा करो। ये लाइट का थोड़ा रीअरेंजमेंट करना होगा, नहीं तो मेरे से पढ़ाई नहीं होता। 9 to 13. 9वां वचन से 13वां वचन। All of you read 9 to 13. 9 वचन से 13। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा न हो कि पाँव पत्थर में ठेस लगे, उसी और नाक को कुछ छिलेगा तो जवान सी और जिगर को लताड़ेगा। Open your mouth and read louder. तो सिंह और नाक को कुचले कर जवान से। 9th verse once again. 9वां वचन एक और बार पढ़े। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान। If you make, यदि तू ऐसे करेगा, यदि तू, that fellow is putting his hand. If you make, यदि तुम ऐसे करेगा तो, it's not a force. ये जबरदस्ती नहीं, If it's not a commandment. ये कोई आज्ञा भी नहीं है, It is suggestion for you. ये आपके लिए सुझाव है, It is an advice for you. ये आपके लिए सलाह के रूप में है। You can accept or you can reject. आप उसको स्वीकार करें या उसको विरोध करें। If you accept it, यदि आप उसको स्वीकार करें, what should you do? आपको क्या करना पड़ेगा? If you make the most high your dwelling place. यदि तू परम प्रधान को अपना धाम मान ले तो, धाम, ये लोग हिंदी में दाम बोलेगा तो समझ में आता है नहीं, रहने के स्थान। यदि तू परम प्रधान को अपना रहने का स्थान बना ले, எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய். Praise God. ഈ അത്യുന്നതനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థానముగా చేసుకుని ఉన్నావు. Somebody is good, but not quite clear. If you make the most high your dwelling. यदि तू परम प्रधान को अपना निवास स्थान मान ले तो, Second way. दूसरा, If you make the Lord your dwelling place. यदि तू यहोवा का अपना शरण स्थान ठहरा दे तो, Who is your refuge? तुम्हारा शरण स्थान कौन है? Lift up your head and read, man. The Lord. He is my refuge. वो मेरा शरण स्थान है। I told you 70 years he has been my refuge. मैंने बोला 70 साल मेरा शरण स्थान था वो। And I want to tell you, if you make the most high or even the Lord who is my refuge, your refuge. यदि आप उस परम प्रधान को अपना शरण स्थान बना ले तो,
Are you able to understand? आप उसको समझ रहे हो? Gentlemen, I always tell you, don't put your heads down. कोई भी अपना सिर नीचे ना रखे, Lift your Bibles. आपके बाइबल को उठाए, Lift your Bibles. बाइबल को उठाओ, Now you read like that. अभी पढ़िए। Then these are the benefits you will get or reap from God. तब आपको ये सारे लाभों और छुटकारा मिलेगा। Then no harm will befall you. कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, No disaster will come near your tent. ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। Why? क्यों? God will command his angels concerning you. परमेश्वर अपने दूतों को तेरे Concerning निमित्त, you. Concerning you. आपके बारे में Who will give him command? कौन आज्ञा देगा? The Most High. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, The Lord. वो परम प्रधान परमेश्वर। He will. और वो, It is not my word. ये वचन मेरा वचन नहीं It है, is your God's word. आपका परमेश्वर का वचन है। You put on good show that you obey God, आप ऐसा दिखावा करते हैं कि आप परमेश्वर को मानते हैं, and he shall be like you for that only. और उसके लिए उतना ही आपके लिए वो बना रहेगा। He will command his angels. वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। Do you know the power of an angel? आप स्वर्गदूत का सामर्थ को जानते हो? Have you ever imagined the power of the angel? कोई भी स्वर्गदूत का सामर्थ को आपने कल्पना किया The है? Bible is full of God's angels expressions. और बाइबल में पूरा परमेश्वर के स्वर्गदूत के बारे में लिखा हुआ है। Concerning you. आपके बारे में। Concerning whom? किसके बारे में? How many of you understand concerning me? कितने लोग समझ पा रहे कि मेरे बारे में? Concerning you. आपके बारे में। To guard you in all your ways. जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। Praise Jesus. I must change my specs. 11. 10th verse you already. What they will do? वे क्या करेंगे? They will lift you up in their hands. वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। वो लड़का इधर देखता नहीं है। They will lift you in your hands, in their hands, अपने हाथों हाथ उठा लेंगे so that ताकि you will not strike your foot on a stone. ताकि तेरे पाँव को पत्थर में ठेस न लगे। Praise God. Praise the Lord. But what is the condition? लेकिन शर्त क्या है? You will have your own plans. क्या आप आपकी खुद की योजना बनाएंगे? You will have your own bungalows. आपके खुद के बंगलो रहेगा? You will dwell in your own places. क्या आप आपके खुद के स्थानों में रहोगे? You have to make the Most High your refuge. आप आपका परम प्रधान को शरण स्थान बनाना You चाहिए have to come and dwell under his shade. और उसकी छाया में आकर वास करना चाहिए। Whose words are these? ये वचन किसका है? It is God Almighty's word. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। So you must live in his home. और उसके घर में आपको रहना चाहिए। Your home shall be God's home. आपका भवन परमेश्वर का भवन होकर रहना चाहिए। Your family should be called God's dwelling place. और आपका परिवार परमेश्वर का रहने का स्थान होना चाहिए। Will you try to have your home like this? क्या आप आपका घर को ऐसा बनाना चाहते हो? It is for you to make that. आपको ये काम आपका है। Never go out of that house. और ऐसे भवन के बाहर न जाइए। Well, God delivered his people from Israel, Egypt. जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मिस्र से बचाया, The day he said, और उस दिन परमेश्वर ने कहा, on the post you must put the lamb's blood. और वहां पर तुम उस चौखटे पर मेमने का लहू को लगाना है। And call all your people to be inside. और तेरे सब लोगों को बुलाकर उसके अंदर ले लेना। And the word of God says, परमेश्वर का वचन में लिखा है, those who dwelt under that blood, और उस लहू के अंदर जो थे, they were all safe. वो सभी लोग सुरक्षित थे। At the midnight, और मध्य रात्रि में angel of destruction went through the whole country. और पूरा देश में से सत्यानाश का दूत गया। And at the midnight, you will read that. और आधी रात में क्या हुआ? There was a great cry और बड़ी विलाप और रोने and का, weeping and mourning in so many houses. आंसू बहाना, विलाप करना, रोना। What happened? क्या हुआ? Oh, my child is lost. ओ मेरा बच्चा मर गया, My son is lost. मेरा लड़का मर गया। Maybe your husband is that son. Maybe your husband is the son.
और हो सकता है कि आपका पति वो बेटा है। Madam, मैडम, madam, है मैडम, maybe your arrogant son is there. आपका अहंकारी लड़का हो सकता है वो पुत्र है, Maybe your arrogant husband is there. और हो सकता है आपका अहंकारी पति वो है, Maybe your arrogant brother is there. हो सकता है आपका अहंकारी भाई वो है। God is impartial. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। कोई मीटिंग में या हफ्ता में तुम देखा नहीं, कोई मीटिंग में फिलिप को देखा नहीं, तुम सुधरता नहीं है, पवित्र आत्मा बोलते बिगड़ता है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Maybe your own brother, हो सकता है आपका खुद का भाई, maybe your husband, हो सकता है आपके पति, maybe your father, the firstborn of the family. और हो सकता है कि आपका पिता जो परिवार का पहलौठा है। God is impartial. परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, God is impartial. परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। God wants to see परमेश्वर देखना चाहता है whether you are the firstborn कि आप पहलौठा हो कि नहीं। and the whole family is obeying God's command. पूरा परिवार परमेश्वर की आज्ञा को मानता है कि नहीं। Slaying a lamb. और उस Slay a lamb. वो मेमना को वध करके Take that blood. उस लहू को लेकर Not upper portion. और उसके चौकठे अलंगों में लगाकर On both the sides. और दोनों भाग में लगाकर, Sir, मिस्टर, not only you should put that blood, और आप लहू लगाना उतना ही नहीं, your all people should be inside. आपके सारे लोग उसके भीतर और अंदर रहना चाहिए, Inside that. उसके अंदर रहना चाहिए, Inside that. उसके अंदर बना रहना है। So they're all inside the family. और सभी लोग परिवार के अंदर थे। Who was outside? कौन बाहर कौन थे? They may in the midst of Israelites also, और इस्राएलियों के बीच में and all the land of Goshen, और पूरा गोशेन का देश, they were slain. और देव वध हुए। You want the slaughter? क्या आपको ऐसा वध किया जाना चाहते हो? You want the slaughter? ऐसा कत्ल चाहते हो? Maybe Israelites, हो सकता है कि आप इस्राएली हैं, but outside the house. लेकिन घर के बाहर। Today invite everybody inside. और बारी सभी लोगों को अंदर आमंत्रण करो। Let everybody be in the word of according to the word of God. सभी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। God will do that. परमेश्वर ऐसा करेगा। God is so full of love. परमेश्वर प्रेम से भरपूर है। Lord is full of kindness. परमेश्वर दया से भरपूर है। But one who rebels the word of God, लेकिन जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध बलवा करता है, one who rebels the word of God. परमेश्वर का वचन का जो बलवा करता है, What is a rebel word in Malayalam? శబ్దతోడు వరా తెలుగు అలా కూడా ఉందా? మీ వాళ్ళ ఎవరు తిరుగుబాటు చేయరే? చేస్తారా? చేస్తారు. ప్రైజ్ గాడ్. గుట్నే अंतिम दिन सारे लोगों के ऊपर तू Close your eyes. कटने का है ये Open your mouth. समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों के अभिषेक। सारे लोगों के ऊपर तू कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते
एक हफ्ता परमेश्वर हमारे लिए खूब आत्मिक भोजन उनके वचन के द्वारा देता रहा, इसलिए आइए धन्यवाद चढ़ाए। पिता परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद, इस आराधना के लिए धन्यवाद, तेरे सेवकों के लिए धन्यवाद, तेरे वश में लाया हुआ प्रजा के लिए धन्यवाद। तेरी मर्सा ये चर्च में पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। ये चर्च में आए हुए हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। जैसे 91 भजन संगीता में पढ़ा, वैसा ही तेरे प्रोटेक्शन अंदर हमेशा रहने पाए। मारकर शांति से बेश यीशु मसीह के महान नाम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम अरे के साथ बनते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।